Hello students, I hope everyone is fine and must be waiting for my video. So here I am with a new chapter from class 6th History NCERT, from hunting, gathering to growing food. So yes, I've not been on YouTube for a long time. I've not been active for a long time. But anyways, due to some reasons, let's move ahead. So this is today's positivity capsule and it says, no one can destroy iron but its own rust can. ठीक है, तो कोई भी आयरन को, लोहे को तोड़ नहीं सकता, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, पर उसकी खुद की जो जंक है, खुद का जो उसका रस्ट है, वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है. In similar ways, no one can destroy a person. आप किसी पर्सन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. हम अपने आप को डिस्ट्रॉय ही करेंगे अपने नेगेटिव एटीट्यूड से, हमारे नेगेटिव माइंडसेट से. No one can destroy a person, but his own mindset can. सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखती हूँ. कोई और बाहरी एक्सटर्नल एजेंट मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. Nobody and no one. So I hope you like the quote and I hope आपको इसका मतलब समझ में आया होगा और आप इस चीज़ को समझेंगे, अपने आप को डिस्ट्रक्शन से बचाएंगे और कंस्ट्रक्टिव वे में लगाएंगे. इसी आशा के साथ मैं चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ. बिफोर दैट I would like to close my video like this so that there is no distraction and we have ample of space on the screen. Okay, so let's begin. From hunting gathering to growing food, Tushar's strange journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were travelling by train and had managed to squeeze into the window seat. Squeeze means to peep out. To peep, jhankna. Into the window seat, his nose glued. Glued is to stick. To stick. Into the glass pane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were the first to be used about 150 years ago? And buses a few decades later?" तो बस चलना few decades later start हुई ट्रेन के. तो तुषार ने सोचा कि अगर ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी तो क्या लोग जहाँ जन्मे वहीं रहते थे पूरे जीवन? Did they not used to travel? Let's see and find out the answer to these questions. The earliest people, why were they on the move? Why did they move? Why did they move from place to place? Why? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. हमारे सबकॉन्टिनेंट में लोग रहते थे as early as 2 million years ago. And we refer to them as hunters gatherers. मतलब उनका occupation क्या था? It was hunting and gathering. Yes, it was hunting and gathering. Number 1, they hunted animals. उससे इनको food मिलता था. They hunted wild animals, caught fish, birds, gathered fruits, nuts, roots, seeds, leaves, stalks and eggs. तो इसी से इनका food, इनका purpose था food, और food के लिए वो ये सब कुछ hunt करते थे. Hunters and gatherers moved from place to place, which means that they did not have a fixed house. Clearing the ink. Why? The reasons are given here. Let me zoom it. And then hunters and gatherers. The first reason, if they had stayed from one place for a long time, अगर एक ही जगह पे वो लंबे वक्त तक ठहर जाते तो वहाँ का सारा अवेलेबल प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाता. They would have eaten up everything. Therefore, they had to go elsewhere in search of food. ताकि एक जगह पे सारे रिसोर्सेज ख़त्म ना हो जाएं.
Second reason, animals moved from place to place and since they were hunters, क्योंकि वो उनको हंट करने के लिए, हंटिंग उनका पर्पस था, तो उनको भी साथ साथ प्लेस टू प्लेस मूव करना पड़ेगा. अदरवाइज डियर, वाइल्ड कैटल, ये सब वहाँ से चले जाएंगे इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स. Because animals move, then the hunters also will have to move and follow their movements. This is very important. They used to follow their movements. Now here we come to the next page and this is reason number 3. So we have discussed 2 reasons. पहला रीज़न क्या था कि अगर वो एक जगह रुक जाते तो वहाँ का सारा फूड एंड एनिमल रिसोर्सेज यानी सारा खाना, हंटिंग, सारा पर्पस ख़त्म हो जाता. सेकेंड रीज़न, क्योंकि एनिमल्स मूव कर रहे थे तो उनके हंटर्स को भी मूव करना ही था. नाउ द थर्ड रीज़न इज प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, क्योंकि सीजन्स अलग अलग हैं. सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन, एक सीजन से दूसरे सीजन उनका मूवमेंट होता था इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, क्योंकि अलग अलग फ्रूट्स, रूट्स ये लोग गैदर करते रहते थे, इसीलिए. नेक्स्ट रीजन, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर, द नीड ऑफ वाटर टू सर्वाइव. वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, while many rivers and lakes are perennial. What is the meaning of perennial? This word, I am highlighting this word perennial. It is very important. I am writing down the meaning or I am just saying it. Perennial means ऐसे rivers, lakes या water bodies जिनमें साल भर पानी रहता हो, which contain water throughout the year. Perennial rivers are those rivers or those water bodies which continue to have water all through the year. Perennial. And second is seasonal rivers. Seasonal rivers जो सिर्फ बारिश के समय में ही जिनमें पानी होता है, with water throughout the year. You can see the reason. यहाँ पे दिया हुआ है. This is very important. Others are seasonal. I told you the meaning of seasonal. People living on the banks would have had to go in search of water during the dry season. Dry season में उनको water ढूंढने जाना पड़ता था, winters and summers में. Clear? Now how do we know about these people? इन लोगों के बारे में हमें exactly पता कैसे चला? So archaeologists. Who are archaeologists? The people who search about historical things. ऐसे लोग जो हिस्ट्री के बारे में सर्च करते हैं. Would have found some of the things हंटर्स एंड गैदरर्स मेड एंड यूज्ड. उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जो हंटर्स एंड गैदरर्स उस टाइम पे बनाते थे और यूज़ करते थे. और उनमें क्या था? यूज टूल्स ऑफ स्टोन. स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, वुड के टूल्स, बोन्स के टूल्स, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव द बेस्ट. और जिसमें से सबसे अच्छा टूल कौन सा था? स्टोन टूल्स. स्टोन टूल्स की लाइफ सबसे ज़्यादा लॉन्ग थी. सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ कौन से टूल्स की थी? स्टोन टूल्स. सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन. क्योंकि वो हंटिंग करते थे तो वो एनिमल्स को खाते थे, हंट करके लेके आते थे, तो उनको कट करने के लिए, मीट को और बोन को कट करने के लिए इन स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे. स्क्रैप बार्क. स्क्रैप बार्क मीन्स ट्रीज के बार्क को स्क्रैप करने के लिए, छीलने के लिए. एंड हाइड्स. हाइड्स आर एनिमल स्किन्स विच आर यूज्ड एज क्लोथ. पहले ज़माने में कपड़ा नहीं होता था तो दे यूज टू वियर एनिमल स्किन्स. चॉप फ्रूट एंड रूट्स. रूट्स और फ्रूट्स को चॉपिंग के लिए भी स्टोन टूल्स का यूज़ था. दिस वॉज ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ स्टोन टूल्स. Some may have been attached to handles of bones or wood to make spears. Spears यानी भाला. And arrows. Arrows is तीर. For hunting. Hunting के लिए भी यूज़ हुआ. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. आग जलाने के लिए. To cook and to prevent animals from coming near them. जानवरों को डराने के लिए, कुकिंग करने के लिए फायर का यूसेज है. वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स. वुड का भी यूज़ था.
वुड का भी यूज था टू मेक हट्स एंड टूल्स. So this paragraph is very important. 3 stars marked. Okay. The other usage of stone tools also includes digging the ground to collect edible roots, as we can see here, and stitching clothes made out of animal skin, as we can clearly see here. Now in this map we will discuss the places where the hunters and gatherers lived. So all the red triangles, this one Bhimbetka, this place, and the next will be, let me erase this first, then this one Hunsgi, Karnool Caves. These were the places where the hunters and gatherers lived. All the red triangles show the places where the hunters and gatherers lived. Now Bhimbetka in present Madhya Pradesh. Present day Madhya Pradesh. This is the site where the hunters and gatherers lived, as we discussed in the map. Red triangle site is an old site with caves and rock shelters. People chose these natural caves. These were the natural caves, not man-made. An important question which will be asked: Bhimbetka has natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. The same function of a present day house. जो आज का हाउस काम करता है, वही उस समय में केव्स काम करते थे. दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड. दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, विच मीन्स दे वर क्लोज टू अ river, a water source which was very important in those days. Now next we will discuss, before that I will clear the ink, and yes, as the stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. तो यानी उनकी ज़रूरत के जितने सामान थे वो जहाँ पे मिलेंगे, उनका शेल्टर या होम वहीं पे होगा. तो ज़रूरत का क्या क्या सामान हुआ? हंटर्स एंड गैदरर्स हैं तो दे वांटेड फ्रूट्स, रूट्स एंड एडिबल, ऑल द एडिबल स्टफ फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. They wanted good quality animals for hunting, for making animal hides, making clothes from the animal skin. Also they used stone tools. तो जहाँ पे stone tools अच्छे मिलेंगे, they will stay or reside there only. Now we will discuss about the rock paintings. कि caves पर जो rock paintings थी वो हमें क्या बताती हैं? What do they tell about the lives of people? So this is it, rock paintings. You can see a painting from a rock shelter. Describe this painting. Just see to this और आप बताइए कि exactly क्या हो रहा है. Can you see that this man looking person, it looks like a man who is hunting a deer or probably some other wild animal. तो इसी तरह से रॉक पेंटिंग्स बनाए जाते थे जो कि अब हमें उनके कल्चर, उनके सोसाइटी, उनके सोशल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताते हैं कि वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, एक्सेट्रा. Many of the caves in which these people lived had paintings on the walls. जैसा कि मैंने अभी बताया, उनके walls पे paintings होते थे जो कि आज हमें information दे रहे हैं. Some of the best examples are from मध्य प्रदेश, जो भी हमने डिस्कस किया, भीमबेटका. It is one of the finest example of rock paintings, and southern Uttar Pradesh also. These paintings show wild animal drawn with great accuracy and skill. Got that, everyone? Now I will erase this and I will just show it to you. So this is a picture of a cave. You can say a natural cave from one of those archaeological sites. वहाँ से ये पिक्चर ली गई. Clear, everyone? Sites. What are sites? Now this is very important. Listen to it carefully.
Sites are the places where remains of things, tools, pots, buildings, etc. are found. जहाँ पे भी ये कुछ चीज़ें मिली आर्कियोलॉजिस्ट को, टूल्स मिले, पॉट्स मिले, या जो स्टोन टूल्स जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे उनसे जुड़ी जो सामान मिले, जहाँ पर मिले, it will be called as sites. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth or may be buried under the earth, even sometimes even under water. ठीक है, तो ये sites थी हमारी. Sites कोई भी ऐसी जगह जहाँ से टूल्स मिलें या कुछ यूटेंसिल्स मिलें जो कि हंटर्स एंड गैदरर्स पुराने समय में यूज़ करते थे. ये अर्थ के सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, अंदर दबा भी हो सकता है और वाटर के सरफेस के नीचे भी पाया जा सकता है. नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. फायर के बारे में कैसे पता चला? फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2. नाउ लेट अस गो टू मैप 2 और देखते हैं कि कर्नूल केव्स कहाँ पे हैं. दिस वन, ये तो मैंने मार्क भी किया था, कर्नूल केव्स. डिड आई मार्क दिस? देखते हैं अब इसके बारे में क्या लिखा है. कर्नूल केव्स हमने देख ली ना, अच्छे से देख ली. कहाँ पे है मैप में? सदर्न रीजन में, पेनिनसुलर रीजन में है, नीचे के रीजन में. समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है कर्नूल केव्स के बारे में. ट्रेसेस ऑफ ऐश. ऐश क्या होता है? राख. ऐश क्या होता है? राख. जो जलने के बाद ब्लैकिश पाउडर बचता है उसको राख कहते हैं. हैव बीन फाउंड हियर. यहाँ पे मिले हैं एशेस. दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर. ये हमें बताता है कि फायर के यूज़ से लोग फेमिलियर थे. वो कुकिंग के लिए फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स. अ सोर्स ऑफ लाइट, रोस्ट मीट एंड एनिमल्स. यानी कुकिंग पर्पज से यूज़ किया गया, रोस्ट करने के लिए मीट को, स्केयर अवे एनिमल्स के लिए, और एज अ सोर्स ऑफ लाइट. So these three uses of fire are very important. I will discuss that all again. सबसे पहले किसके लिए? लाइट सोर्स की तरह, कुकिंग टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारी नेम्स एंड डेट्स. आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग. जिस टाइम के बारे में, जिन हंटर्स एंड गैदरर्स के टाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज, उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने लेंथी नेम्स दिए, खूब लंबे चौड़े बड़े बड़े नाम. दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड एज द पेलियोलिथिक. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अर्लीस्ट पीरियड को क्या कहा गया है? पेलियोलिथिक. दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. ये जो शब्द है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है. द फर्स्ट वर्ड इज पेलियो विच मीन्स ओल्ड. पेलियो का मतलब है ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन. ओल्ड स्टोन यानी स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज. द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स. क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, स्टोन टूल्स मिले थे, स्टोन टूल्स का यूसेज चल रहा था, स्टोन टूल्स का सबसे बड़ा काल था. इसीलिए हम पेलियोलिथिक एज को एज ऑफ स्टोन टूल्स भी कहते हैं. द पेलियोलिथिक, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम द 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into lower, middle and upper Paleolithic. ये पेलियोलिथिक भी 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, लोअर, मिडिल and upper. Okay, it covers a time of 99% of human history. यानी 99% of time कौन सी एज चली है ह्यूमन हिस्ट्री में? पेलियोलिथिक एज. The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic. Meso का मतलब होता है middle, Mesolithic age, middle stone age. Is that clear everyone? So Paleolithic पढ़ा, फिर 12,000 years के बाद से 10,000 years तक कौन सी एज थी? Mesolithic, middle stone age शुरू हो गई. Stone tools found during this period are generally, let me erase this, now it's clear.
जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। तो इस एज में, इस पीरियड में, मीसोलिथिक पीरियड में जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो बहुत छोटे थे, टाइनी टाइनी, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक, इसको इरेज कर देते हैं, नाउ क्लियर, generally stuck onto the handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles। उस समय में क्या क्या होता था, छोटे छोटे स्टोन टूल्स को बना के हड्डियों के, बोन्स के या वुड के एंड पे चिपका देते थे, टू स्टक इट। एंड टूल्स कैसे बनते थे, सॉज, आरी की तरह, लाइक अ सॉ, आरी की तरह, ठीक है, लाइक अ सॉ। एंड सिकल्स, सिकल्स क्या होते हैं, कुछ इस तरह की शेप वाले, कुछ इस तरह की शेप वाले टूल्स जो कि कभी कभी क्रॉप्स को कट करने में यूज़ होते हैं। एट द सेम टाइम्स ओल्डर वैराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज। जैसे फैशन नया आता रहता है, इज़ दैट ट्रू, ड्रेसिंग का फैशन और मेकओवर का फैशन नया आता रहता है, लेकिन क्या पुराना फैशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है? ऐसा नहीं है, पुराना फैशन भी एट द सेम टाइम चलता रहता है और नया धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता रहता है, राइट। अब देखते हैं उसी तरह क्या था, पेलियोलिथिक टाइम के स्टोन टूल्स भी चल रहे थे, लेकिन मीसोलिथिक नए वाले स्टोन टूल्स भी मार्केट में आ चुके थे, मतलब इन द सेंस लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया था। नाउ अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। नियो का मतलब होता है न्यू, नियो मतलब होता है न्यू, मैं बार बार बोल रही हूँ, नियो मतलब न्यू, लिथिक यानी स्टोन, न्यू स्टोन एज या लेट स्टोन एज, अपर वाली स्टोन एज आ गई है। अब 10,000 ईयर्स के बाद कौन सी स्टोन एज आ गई, नियोलिथिक, ठीक है। तो अब अगर हम सेकंड वाला मैप देखने जाएं, अब देखो इस मैप को, नाउ जस्ट गिव मी 1 मिनट, इस इनको मैंने इरेज कर दिया और अब ध्यान से देखो इस मैप को। क्या आप इसके इंडेक्स में देख सकते हैं? इट्स अ बिट ब्लर, लेकिन आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग योर बुक्स। सो उसके लिए देखो, ये जो ट्राइंगल्स है, रेड ट्राइंगल्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पेलियोलिथिक साइट्स हैं। ये जो ब्लू कलर के स्क्वायर्स हैं, ये नियोलिथिक साइट्स हैं। ये ग्रीन सर्कल्स मेसोलिथिक साइट्स हैं। पर्पल वाले अर्ली विलेज हैं और ये स्टार्स क्या है, मॉडर्न सिटीज़, ठीक है। अब हम मैप को अच्छे से रीड कर पाएंगे। ये क्या है, मीसोलिथिक, मीसोलिथिक साइट दिख रही है साउथ में, केरला, क्लियर एवरीवन। अब देखो, जस्ट गिव मी 1 मिनट, यस, डिड वी डिस्कस दिस? ब्लू कलर के स्क्वायर्स क्या दिखा रहे हैं, ब्लू कलर के स्क्वायर्स क्या दिखा रहे हैं बताइए, नियोलिथिक साइट्स, ओके। ये देखिए नियोलिथिक साइट्स। अब देखते हैं नियोलिथिक साइट्स, ब्लू स्क्वायर्स कहाँ कहाँ हैं। मेहरगढ़, कैन यू सी दिस एवरीवन, दिस प्लेस, बुर्जा होम, दिस प्लेस, ऑल्सो सी दिस वन, लेट मी शो यू। ब्लू स्क्वायर्स अब जहाँ जहाँ बने हैं देखिए उसको, कोल्डी हवा, चिरांद, अब ये देखिए मॉडर्न सिटीज़ आ गई, येलो स्टार्स, मुंबई, इसके नीचे मुंबई बनी हुई है। अब क्या करेंगे, मैप को डिस्कस करते जाएंगे बिना मार्क किए। आई विल डिस्कस द मैप। देखो ये दिख रहा है ब्लू स्क्वायर्स, इनाम गांव, इनाम गांव कहाँ आ गए हम लोग, अर्ली विलेजेस पे। नाउ वी कैन रीड द मैप इजीली। अब हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, स्केल्स डिस्कस कर लिए, तो मैप रीड हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। So how did the environment started to change? Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions. अब conditions कैसी होने लगी थी, warmer conditions आने लगी थी. In many areas, this led to development of grasslands.
बहुत सारे एरियाज़ में इसी वार्मर कंडीशन आने की वजह से ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगे. इन दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ grassland animals like the deer, antelope, goat, sheep, cattle and the animals that survived on the grass. तो यही grassland animals का emergence बढ़ने लगा था. Now this is important, which kind of animals and which kind of conditions? Grassland condition. These two things are important. Next, those who hunted these animals now followed them. Yes, they will always have to follow them, learning about their food habits and their breeding seasons. What are breeding seasons? Just a second. Breeding seasons are the seasons in which those animals reproduce. It is likely that this happened. People started to thinking about herding and rearing of these animals themselves. Fishing also became important. So we can see an emergence of new climate as well as new occupation of the people. Next paragraph is the beginning of farming and herding. People started to use agriculture as a means of occupation as well as herding, भेड़ बकरियां चराना. This was also a time when several grain bearing grasses including wheat is a kind of a grass, barley and rice, these are grasses which are grain bearing, जो हमें grains देते हैं, naturally in different parts of the subcontinent. ये grew होने लगे naturally. अभी इनका agriculture शुरू नहीं हुआ था. Men, women and children probably collected these grains as food and learnt where they grew. They were ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. और इसी की वजह से उनको आइडिया आया कि क्यों ना हम प्लांट्स को खुद ग्रो करें, क्यों ना हम एग्रीकल्चर खुद स्टार्ट करें. नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? वीट, बार्ली, राइस, ये सारा इम्पॉर्टेंट है. दस व्हाट हैपेंड, जैसे ही उनको ये आइडिया आने लगा कि क्यों ना हम इन्हीं प्लांट्स को खुद से ग्रो करें, इसी वजह से इसी तरीके से ये लोग फार्मर्स बन गए. क्योंकि पहले तो नेचुरली ग्रो होने लगा, फिर नेचुरल होने के बाद जब लोगों को आइडिया आने लगा कि इनको हम फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो लोगों ने खुद ग्रो करना शुरू किया. एंड दस दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. नेक्स्ट, पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स को पेट बनाने लगे बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. This is an important question. यहाँ से यहाँ तक प्लीज़ मार्क कर लीजिए, ये important question है. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle and to come near the camps where they lived. These animals were like sheep, goat, cattle and also pig. Lived in herds. ये लोग झुंड में रहते थे. And most of them ate grass खाते थे. Often people protected these animals from the attack of other wild animals. This is how they became herders, यानी कि जो भेड़ बकरियां चराते हैं. डोमेस्टिकेशन. नाउ व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन? डोमेस्टिक को पालतू बनाना. जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड प्लांट्स हैं, उनको टेम करना और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना. ह्यूमन बींग्स आर वेरी क्लेवर. दे ऑलवेज यूज द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे ऑलवेज एक्सप्लॉइट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. सो नाउ लेट अस रीड इट. Is the name given to the process. It is a process by which people grow plants and look after animals. Please make a star mark. These two things are important. Domestication क्या है? वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स टेम करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को लुक आफ्टर करते हैं. वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल, जिनको पीपल टेंड करते हैं. टेंड करना नहीं, प्यार देना, उनको डोमेस्टिकेट बनाना. बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. जैसे कि हमारे पेट्स में, पेट डॉग्स, पेट कैट्स में डिफरेंस आ जाता है. जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो अलग होते हैं और पेट हमारे डॉग्स अलग होते हैं. वैसे ही ये होता है कि जब भी एनिमल्स को टेम किया जाता है तो वो डिफरेंट बन जाते हैं. दिस इज़ बिकॉज पीपल सिलेक्ट. ह्यूमन बींग्स आर वेरी क्लेवर. दे सिलेक्ट द plants and animals that they require, that provide them some goods, food, nutrition, etc.
ठीक है। तो वो उन प्लांट्स और एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं जिनको उनको डोमेस्टिकेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़, जिनको कोई डिजीज़ ना लगी हो, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उनके पेट्स जो सिलेक्ट किए गए हों उनको डिजीज़ लगी हो। उससे क्या होगा, ह्यूमन बींग्स का एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। ह्यूमन बींग्स बहुत स्मार्ट है, वो अपने खर्चे नहीं बढ़ाना चाहते। दे वांट कि ऐसा प्लांट और एनिमल को डोमेस्टिकेट करें जिनमें कोई भी डिजीज़ ना लगी हो। दे ऑल्सो सिलेक्ट द प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, जो बड़े बड़े मोटे मोटे दाने देते हों। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, उनकी स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो, कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, और वो पके हुए अनाज का, पके हुए दाने का वेट भी ऐसा ना हो कि प्लांट बहुत हल्का हो। ठीक है। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड, उनको बचाया जाता है। सोन टू इंश्योर दैट द प्लांट्स लैंड सीड्स विल हैव द सेम क्वालिटीज़। फिर उन्हीं के बीज को हम वापस ज़मीन में बो देते हैं ताकि फिर जो दोबारा नेक्स्ट जनरेशन प्लांट होगे उसमें सेम क्वालिटीज़ आए। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ और इसको स्लाइड डाउन करते हैं। विजिबल एवरीवन? Amongst animals, those are relatively gentle and are selected for breeding. जो एनिमल्स जेंटल ना हो, बहुत ज़्यादा खूंखार ना हो, बहुत ज़्यादा वाइल्ड ना हो, उन्हीं को हम एज अ पेट सिलेक्ट करते हैं फॉर ब्रीडिंग पर्पस। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर एंड मच शार्पर देन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। बाहर के डॉग, स्ट्रीट डॉग्स के टीथ में जर्म्स होते हैं क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं होते, उनके टीथ बड़े। जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं उनके टीथ बड़े और मोर शार्प, लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है। जैसा हमारा फूड हैबिट, पेट का फूड हैबिट कैसा रहता है, घर जैसा। लाइक हम लोग उसको बहुत कोई रफ एंड टफ मीट तो ऐसा देते नहीं हैं, जबकि वाइल्ड एनिमल्स तो सब कुछ खाते हैं जो भी वाइल्ड में मिलता है। ठीक है। डोमेस्टिकेशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, डोमेस्टिकेशन धीरे धीरे होता है। दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट बिगेन, जस्ट अ मिनट, आई एम क्लियरिंग दिस, थोड़ा सा देते हैं। ओके, चलो। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होता है। दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट बिगेन अबाउट 12,000 years ago. This will be a question. Virtually all the plants and animals produced that we used as food today is a result of domestication. हमने पहले क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स को उगाया, फिर उनको मिक्स किया, जैसे कैबेज को और कॉलीफ्लावर को मिक्स किया तो हमारे पास एक नया वेजिटेबल मिल गया, हाइब्रिड बनाया। ठीक है। पोटैटो और टोमेटो को मिक्स किया तो क्या बन गया, पोमैटो बन गया, हाइब्रिड। तो ये सब हमारा डोमेस्टिकेशन के वजह से हो पाया, क्योंकि पहले हमने पोटैटो टोमेटो को ग्रो किया, फिर ही तो मिक्स करेंगे उनके सीड्स को। वीट, सबसे पहले अर्लीस्ट प्लांट्स कौन कौन से डोमेस्टिकेट किए गए, वीट, बार्ले। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वर शीप्स एंड गोट्स। दीज आर द क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये चारों नाम, वीट, बार्ले, शीप, गोट, प्लीज अंडरलाइन देम एंड लर्न इट थॉरली. So now as we move forward, our next topic is a new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. ऐसा तो नहीं है कि instantly grow कर जाता है. This may be for several days, weeks, months and in some cases years. ठीक है. तो या तो ये कुछ दिन लेता है, or it takes some weeks, or it takes some months, or even some years. The people begin growing plants. अब लोगों ने प्लांट्स ग्रो करने शुरू किए. It meant that they had to stay in the same place for a long time looking after those plants, which means कि आज अगर मैंने सीड सो किया तो मुझे कुछ समय तक एक ही प्लेस पे रुकना पड़ेगा to look after and to take care of that plant so that it grows properly. Watering, weeding, driving away animals and birds. तो उसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, उसको वाटर करना पड़ेगा. वीडिंग जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, दे आर कॉल्ड वीड्स. तो हमें वीड को हटाना पड़ेगा, एनिमल्स को उससे और बर्ड्स को उससे दूर रखना पड़ेगा ताकि वो प्लांट को ख़राब ना कर दें.
till the grain ripen, जब तक grain mature नहीं हो जाता, ripe नहीं हो जाता. And then the grain had to be used carefully, और उसके बाद उस grain को हमें properly use करना है. कैसे use करना है? As a seed, as food, as gifts और as stored for food. तो ये 4 तरीके हैं जिनसे हम grain को use कर सकते हैं. सीड के तरह भी, फूड की तरह भी, और लेन देन के टाइम गिफ्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. ऑल्सो वी कैन स्टोर इट एज फूड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड. ठीक है, तो एज अ फूड भी हमें स्टोर करना था ग्रेन को, और सीड के तरह भी. पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट. ठीक है, अब हमें उसको किस तरीके से स्टोर करना है ये भी सोचना पड़ेगा. So people had to think of ways of storing it. In many areas they began making large clay pots. लोगों ने क्या सोचा कि इसको clay pots में स्टोर करते हैं, तो clay pots बनाने शुरू किए, और वो baskets या तो baskets में रखना शुरू किया, और dug pits गड्ढे into the grounds. So ये कुछ तरीके थे जिससे उन्होंने grains को स्टोर करना शुरू किया. They started storing grains. ग्रेन्स को क्या करना शुरू किया? स्टोर करना शुरू किया. नेक्स्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. स्टोरिंग एनिमल्स. नाउ हाउ आर दे गोइंग टू स्टोर द एनिमल्स? एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. मल्टीप्लाई मीन्स reproduce, producing babies. Reproduce. Okay, multiplying here means reproducing. Besides, if they are looked after carefully, अगर उनकी अच्छे से देखभाल की जाए, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. तो milk देंगे और meat देंगे. These two things are very beneficial, milk and meat. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. They are in a way a storehouse of food. एक तरह से वो फूड का स्टोर हाउस है, क्योंकि वो क्या देंगे, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मिल्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम जब भी हमें ज़रूरत हो वो मीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इन अ वे डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन वो फूड का स्टोर हाउस हो गया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. पहले फार्मर्स और हर्डर्स कौन? नाउ अगेन टर्न टू मैप 2. यू हैव मैप 2 ऑल इन योर बुक्स, पेज नंबर 13. You will notice a number of blue squares. Blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found the evidence of early farmers and herders. ये blue squares से जितनी भी sites marked हैं, they show the places जहाँ पे पहला evidence मिला herders and farmers का. These are found all over the subcontinent. पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में छोटी छोटी जगह ब्लू स्क्वायर्स बने हुए हैं. वहीं पर पहली बार फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स का एविडेंस दिखाई दिया. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन में बहुत इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं. इन द प्रेजेंट डे कश्मीर एंड ईस्ट इन साउथ इंडिया. सो दीज आर सम प्लेसेस जहाँ पे इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस मिले हर्डर्स और फार्मर्स के रहने के. नाउ अगेन ओके, नेक्स्ट, टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स. क्या ये सेटलमेंट्स थी फार्मर्स और हर्डर्स की? साइंटिस्ट क्या करते हैं? दे स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स. प्लांट्स और एनिमल्स की जो रिमेन्स हैं, जो बोन्स हैं, उनको स्टडी करते हैं. One of the most exciting finds includes the remains of burnt grain. This is one of the most exciting as well as important findings of the archaeologist. Burnt grains मिलना शुरू हुए, जले हुए अन्न के दाने. These may have been burnt. Just a second. These may have been burnt accidentally or on purpose. अब या तो ये जानबूझ के जलाए गए थे on purpose or maybe accidentally. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were also grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of animals. That's why we can conclude कि हाँ, ये animals या ये plants उस समय में रहे होंगे
वो लोग ग्रो कराते होंगे। नेक्स्ट इज टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। अब देखो हंटर्स एंड गैदरर्स क्या थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिलने लगा, ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। कहीं कहीं पे उन्हें हट्स और हाउसेस भी मिलने लगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हंटर्स एंड गैदरर्स जो थे वो एक प्लेस से दूसरा प्लेस मूव करते रहते थे, लेकिन अब क्योंकि उनको हट्स और हाउसेस के ट्रेसेस मिलने लगे, जिसका मतलब ये है कि अब वो एक सेटल्ड लाइफस्टाइल की तरफ मूव करने लगे, विच मीन्स कि अब वो एक ही प्लेस पर सेटल्ड होना ज़्यादा पसंद करने लगे। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब होता है फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, इन बुर्जा होम, बुर्जा होम इज़ अ साइट, ठीक है, आपको मैप पे आराम से दिख जाएगी बुर्जा होम, मैंने अभी डिस्कस भी किया था कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो ये बुर्जा होम साइट है, इसमें क्या है इन, सो बुर्जा होम इज़ इन प्रेजेंट डे कश्मीर, प्रेजेंट डे कश्मीर में है ये साइट। पीपल बिल्ट पिट हाउसेज बनाने लगे, पिट मतलब होता है गड्ढे, विच वर डग इन टू द ग्राउंड, ग्राउंड में डग करके, विथ स्टेप्स लीडिंग टू देम, स्टेप्स यानी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड मैं अभी बता रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो अभी जैसे कि बोला कि पिट हाउसेस बनाए, तो पिट हाउसेस क्या थे कि ज़मीन में गड्ढा कर दिया, ठीक है, और सीढ़ियाँ लगा दी अंदर जाने के लिए। क्या किया, ज़मीन में होल डिग कर दिया, एक ऐसा गड्ढा कर दिया और सीढ़ियाँ लगा दी अंदर जाने के लिए। ऐसा उन्होंने स्टार्टिंग में पिट हाउस बनाना शुरू किया, घर, गड्ढे में घर बनाने शुरू किए उन्होंने, ठीक है। फिर क्या हुआ, विथ स्टेप्स लीडिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो लोग पहले क्या बनाने लगे, सबसे पहले पिट हाउस, ये इम्पॉर्टेंट है, और डग कहाँ थे, ग्राउंड में डग थे और सीढ़ियाँ अंदर से लगी हुई थी। दीज में हैव बीन प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के टाइम ये शेल्टर प्रोवाइड करते थे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो हैव फाउंड कुकिंग हर्ट्स, कुकिंग, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स। कुकिंग हर्ट्स क्या होते हैं, बर्तन, यूटेंसिल्स, ओके। थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, चलो कुछ नहीं, मैं फिर से लिख देती हूँ। आई थिंक माई वॉइस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, तो यूटेंसिल्स आप लिख सकते हैं। कुकिंग हर्ट्स मतलब होता है खाना बनाने के लिए जो बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, दोज आर यूटेंसिल्स, ठीक है। इनसाइड भी मिले और आउटसाइड भी मिले हट्स के, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, वेदर पे डिपेंडेंट थे पहले ह्यूमंस, डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड ईदर इंडोर्स और आउटडोर्स। सो अकॉर्डिंग टू द वेदर या तो लोग अंदर या बाहर खाना बना लिया करते थे। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पहले क्या होता था, एनिमल्स या ह्यूमंस कह लो, ह्यूमंस क्या होते थे, वो वेदर पे डिपेंड उनके एक्शंस करते थे, ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, चलो पहले इस इंक को क्लियर कर ले हैं, आगे लाइक दिस ड्रॉ पिट हाउस। देखो अभी मैंने एक रफ डायग्राम बना के दिखाया। स्टोन टूल्स में हैव बीन फाउंड इन मैनी साइट्स एज वेल, फ्रॉम मैनी साइट्स, बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं, ठीक है। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पेलियोलिथिक टूल्स। मैंने बताया था कि पेलियो में अलग टूल्स, मीजोलिथिक में अलग, फिर नियोलिथिक में अलग टूल्स आ गए, ठीक है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक, नियो मीन्स न्यू। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड, अब टूल्स क्या होने लगे, पॉलिश्ड, टू गिव अ फाइन कटिंग एज, ठीक है, धार तेज होने लगी। एंड मोटार्स, नाउ दिस विल बी आस्क्ड चिल्ड्रन, मोटार्स एंड पेस्टल। खलल देखा है, कूटने वाला खलल देखा है किसी ने, घर पे होगा इस टाइप का, इसमें आप मसाले वगैरह कुछ कूट सकते हैं, ठीक है, खलल हम लोग कहते हैं इसे। मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, कूटने के लिए बेसिकली, क्योंकि मिक्सी वगैरह तो नहीं होती थी। मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन
एंड इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, आज भी घरों में ये चीज़ें मिल जाती हैं. एट द सेम टाइम टूल्स इन द पेलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड. मैंने कहा ना, फैशन नया आता रहता है, लेकिन पुराना फैशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, वो भी इन कंटिन्यूएशन चलता रहता है. तो पेलियोलिथिक टूल्स भी ऐसा नहीं हुआ ख़त्म हो गए, चलते रहे और बोन्स के बने थे वो टूल्स. एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड बोन्स, और बहुत सारे टूल्स बोन्स के भी बन रहे थे. क्लियर? In the next slide we can clearly see all the stone tools here. So these were some kind of stone tools that were used as those times. First of all I will zoom it so that it is clear. I think now we can see that clearly. Many kinds of earthen pots यानी मटके, घड़े, जिनको हिंदी में मटका या घड़ा कहते हैं, okay, have also been found. These were sometimes decorated. These were even decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat and lentils. That now became an important part of. Lentils are दालें, ठीक है? Wheat, rice and lentils means दालें. That became an important part of the diet. So let me zoom it, then only it will be visible. Clear everyone? Okay, these are some kind of pots you can see. Okay, these pots you can clearly see. Now next is like this. I should do it. There it is. Now let's start. So wheat, rice and lentils are the important part of diet. Besides, they began weaving clothes बुनना उन्होंने शुरू किया, using different kinds of material. For example, cotton that can now be grown. अब तो cotton भी grow करना शुरू कर दिया था. So therefore they used cotton. Did things change everywhere and all at once? क्या एकाएक एकदम से चीज़ें बदलने लगी? नहीं, ऐसा नहीं होता. जब भी कोई चेंज आता है, जब भी कोई बदलाव आता है, तो वो धीरे 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 आता है. चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे वो लिविंग स्टाइल हो, एवरीथिंग, कुछ भी होता है, बदलाव धीरे धीरे आता है, ग्रेजुअली एंड स्लोली. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर? नो, नॉट क्वाइट. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food. अभी भी लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे. एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग, और बहुत सारी जगहों पे लोगों ने फार्मिंग और हर्डिंग को अपना ऑक्यूपेशन बना लिया. ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, ठीक है, बहुत सारे थाउजेंड ईयर्स बीते, ऐसे चेंज नहीं आता. बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज़. कुछ लोग अभी भी हंटर्स और गैदरर्स थे, कुछ लोगों ने फार्मिंग और ग्रोइंग फूड कर लिया था अपना प्रोफेशन, हर्डिंग प्रोफेशन कर लिया था. कुछ लोगों ने उन दो प्रोफेशंस को कंबाइन कर दिया था, जो कि डिफरेंट थिंग्स करते थे इन सीजन. उनका जो एक्टिविटी था वो बदलता रहता था. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ क्विकली. Now this is the last paragraph. A closer look, living and dying in Meherghar. So what is this place? It is Meherghar, and now I am going to discuss it all about. Find Meherghar in map 2. You have map 2 at page number 13. Go and find Meherghar. This site is located in a fertile plain. कैसी site है? Fertile plain में located है, near the Bolan Pass. This is important. Where is Meherghar located? It is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. ईरान जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है बोलन पास को क्रॉस करना. वहीं पे मेहरगढ़ है. मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat. सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे लोगों ने वीट और बार्ले को ग्रो करना सीखा. एंड रियर शीप रियरिंग सीखी, गोट रियरिंग सीखी फॉर द फर्स्ट टाइम in this area. It is one of the earliest villages that we know about. ठीक है, जहाँ तक हम जानते हैं कि one of the earliest villages है. At this site many animal bones were found. तभी हमने ये चीज़ें
कंक्लूड की कि हो सकता है सबसे पहले ही ये जगह हो जहाँ पे लोगों ने सीखा हो। नेक्स्ट, ओके, it is one of the earliest villages that we know about. At this site many animal bones were found, bones of wild animals such as the deer, the pig, and also bones of sheep and goat were found. These animals are absolutely important, इसलिए मैंने dark underline किया है. Other finds at Mehergarh include remains of square or rectangular houses. ये भी चीज़ मिलने लगी यहाँ पे, इससे पता लगने लगा कि अब लोग घर बना के घर में ही एक जगह सेटल्ड रहते थे, ऐसा नहीं हंटिंग एंड गैदरिंग करते रहे. ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, 4 या तो उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते थे. सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज. स्टोरेज किसकी होगी? फूड ग्रेन की होगी. व्हेन पीपल डाई, जब लोग मर जाते थे, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम. पीपल लुक आफ्टर is the chapter over? So when people died, the relatives and their friends paid respect to them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. वहाँ उस समय पे लोगों के क्या beliefs थे? Perhaps in the belief that there is some form of life after death. Death के बाद भी एक नया जीवन है. Burial is one such arrangement. Burial means गाड़ देना, बरी करना. is one such arrangement. ऐसा arrangement है. Several burial sites. Now burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve food in the next world. तो लोगों का कहना था कि क्योंकि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो एक पर्सन को गोट्स के साथ बरी किया गया था ताकि वो उसे नेक्स्ट जीवन में सर्व करें. क्लियर? सो नाउ let me clear the ink. Okay, now we move towards the end of the chapter और यहाँ दिया है elsewhere. Cave paintings in France. I should zoom it to the full length like this. Okay, let's discuss. Find France in your atlas. The painting below from a cave in France. It is from a cave in France. You can see the painting here. In your book also it may be given. So it's like that. Visible everyone? ये है painting. इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं. This site was discovered by 4 school children more than 100 years ago. 100 years back, 4 school children discovered this site. Paintings like this were made between 20,000 to 10,000 years ago. इतना समय पहले केव पेंटिंग्स बनाई जाती थी. मैनी ऑफ दीज वर एनिमल्स. आप ठीक से देखेंगे उस पेंटिंग को तो आपको एनिमल्स नज़र आएंगे. एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेस. प्लीज़ अंडरलाइन दिस. द नेम्स ऑफ एनिमल्स, द नेम ऑफ साइट्स, देयर रिचुअल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़. ओके एवरीवन. सो वाइल्ड हॉर्सेस, aurochs, an older form of cattle, bison, woolly rhinoceros. Please understand this very carefully. These are the animals which were drawn in those times, which were present at those times. So bison, aurochs are an older form of cattle, aurochs. Okay, bison, woolly rhinoceros, reindeer, bear, painted in bright colors. You can clearly see in the paintings. Okay, let's move ahead. Now, yes, these colors were made from minerals. ये colors कहाँ से लाते थे? Faber Castell के colors? No. From some brand? No. They got it from the minerals like the ochre और आयरन ओर और चारकोल. ठीक है, उस समय ये बिग ब्रांड्स के कलर, ये जो हम सुंदर डोम्स के कलर यूज़ करते हैं ना, वो नहीं मिलते थे. तो मिनरल से कलर बनाते थे, आयरन ओर से कलर बनाते थे, चारकोल से कलर बनाते थे. इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन.
हो सकता है कि किसी सेरेमनी के दौरान ये पेंटिंग्स करी जाती हों, और परहैप्स दे वर मेड ऑन फॉर स्पेशल रिचुअल्स, या तो वो स्पेशल रिचुअल्स के लिए बनती हो, परफॉर्म बाय हंटर्स एंड गैदरर्स व्हेन दे वेंट टू द सर्च ऑफ प्रे। तो ये सब सिर्फ अजम्पशन है, क्योंकि हम तो उस समय थे नहीं, हमें तो जो जो चीज़ें मिल रही हैं हम उसी के हिसाब से अज्यूम करें कि हो सकता है वो ऐसा करते हो सकता है वो ऐसा करते हो, जो रिसर्च हो रही है उसके बेसिस पे हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। Now we come to the very last paragraph of the chapter. Find Turkey in your, it's about a Neolithic site. So find Turkey in your atlas, you will easily get it. One of the most famous Neolithic sites, please underline this, most famous Neolithic sites, Çatalhöyük. Kartal, it's not cattle, I would pronounce it as Kartal. Çatalhöyük was found in Turkey. ये most famous Neolithic site है, please underline it. Several things were brought from great distances. Flint from Syria. Flint एक तरह का ग्लास होता है जो कि सीरिया से लाया गया. Cowries from the Red Sea. Shells from the Mediterranean Sea. समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, प्लीज़ अंडरलाइन करते जाओ. एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट, और इस सेटलमेंट में, ये जो सेटलमेंट है काटलहुयुक, इसमें टर्की में ये सेटलमेंट है, नियोलिथिक साइट है. यहाँ पे सीरिया से मंगवाया गया था फ्लिंट, रेड सी से काउरीज और मेडिटेरियन सी से शेल्स मंगवाए गए थे और इस सेटलमेंट में यूज़ किया गया था. ऑल्सो रिमेंबर दैट देयर वर नो कार्ट्स, कोई कार्ट्स नहीं होते थे, कोई गाड़ी टाइप का नहीं होता था. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड हैव बीन कैरीड ऑन द बैकपैक ऑफ एनिमल्स सच एज कैटल और बाय पीपल. या तो लोग या तो एनिमल्स उन्हें कैरी करते थे. एंड योर चैप्टर इज ओवर. सो एवरीवन, वी केम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. और क्योंकि मुझे आपसे मिलना है तो मैं खोल रही हूँ कैमरा. तो मेरे ख्याल से मैं सबको विजिबल हूँ, क्लियर हूँ बिल्कुल. एक सेकेंड, मैं इसको इस साइड कर देती हूँ. अब ठीक है everyone. So we came to the end of this session. और if you like the session, आपको अगर पढ़ने में मेरे साथ मज़ा आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें to be a part of our small YouTube family. Thank you. Take care. Bye bye.